Hello and welcome everyone in today's class. Today we are going to learn the Sound of Music Part 2, the Shehnai of Ustad Bismillah Khan. So my dear students, when we recall the word Shehnai, we obviously think about two things. These are the first one, we think about marriage and the another उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो जब भी हम शहनाई के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो प्रकार के ख्याल आते हैं. एक तो शादी का ख्याल आता है, वैसे आपकी शादी का नहीं, किसी और की शादी का, क्योंकि शहनाई जो है शादियों में बजाई जाती है. और दूसरा ख्याल हमारे माइंड में आता है वो होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंडरी शहनाई प्लेयर एंड ही इज़ वेरी फेमस म्यूजिशियन ऑल्सो. He is called legend. Why? Because he played Shehnai when our India got freedom on 15th August 1947. He sang that Shehnai in front of our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and he was awarded by the India's highest civilian award, that is Bharat Ratna. Then he won Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Padma Shri also. So many awards he had achieved in his life, and he did performances in India and in abroad also. So that is the reason that he is called legend and he is very famous Shehnai player. So we'll see the explanation. So let's get started. Do you know these peoples, what instruments do they play? So here you will see some musicians are there. They play different kind of musical instruments. At last you can see Ustad Bismillah Khan, who is playing Shehnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. So there were Mughal in our country. They ruled before Britishers. So there was a famous Mughal emperor whose name is Aurangzeb. So he banned playing of musical instruments called pungi. So he banned that. He didn't allow in his court the musical instrument which was pungi. Why? Because he felt that the sound of that pungi is not good. It is unpleasant. It doesn't give pleasure to us. So he banned to it. And pungi became the generic name for reeded noisemakers. So generic name means a name given to a class or a group as a whole. So पूरे क्लास को या ग्रुप को दिया जाता है, वो नाम को हम जेनेरिक नेम कहते हैं. सो पुंगी नाम जो दिया जाता था वो पूरे रीडेड नॉइज मेकर को दिया जाता था, यानी जिसको भी होल होता है और वैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका आवाज़ कुछ अलग प्रकार से आता है, तो उसे हम जेनरिक नेम से पुंगी ही कहा जाता था उस टाइम पे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. सो सम ऑफ देम थॉट इट वुड कम बैक. रिवाइव्ड का मीनिंग क्या होता है कि फिर से स्टार्ट हो जाना. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली प्रोफेशन म्यूजिशियंस. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. So there was one barber who belongs to musician family and he was working in his court. So he decided to make another musical instruments that will be different from pungi and which will make a good and pleasant sound. So he tried for it. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. So what he did, he took one pipe by using one stick. That hollow sticks means what? Which is empty from inside. जो अंदर से empty होता है उसे हम hollow stem कहते हैं. तो उसने यूज़ करा हो. It was broader and longer than pungi. उससे काफ़ी बड़ा था वो. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसके जो ऊपर से उसने बॉडी के ऊपर से कुछ होल्स बनाए, दैट वेर 7 एंड मेड 7 होल. सॉरी, ये तो हो गया यार, फिर से हो गया था. सो व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस. सो व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग इट, जब उसने कुछ होल्स को क्लोज किया, कुछ होल्स को ओपन किया और
by using this he felt that there was melodious sound was produced. So अच्छा sound आया जब उसने होल को क्लोज किया और ओपन किया तो उसे अच्छा साउंड लगा वो. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. सो जब उसने उस रॉयल्टी में उस कोर्ट में वो प्ले किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, it was differ from the pungi, so everyone were impressed with this music, they liked it. So the instruments so different from the pungi had to be given a new name. So it was different from the pungi, that's why it should be given a new name. As the story goes, जैसे कि एक स्टोरी बताई जाती है उसके बारे में, since it was first played in Shah's chamber and was played by a nai, it means barber, so the instruments was named the shehnai. So it was played इन द कोर्ट ऑफ एम्परर. सो हम शाह के चेम्बर में, यानी किंग, शाह का मीनिंग क्या होता है किंग, किंग के चेम्बर में फर्स्ट टाइम ये प्ले किया गया. सो शाह, एंड इट वॉज प्लेड बाय अ बार्बर. सो बार्बर इज कॉल्ड नाई इन हिंदी. सो दैट वॉज द रीज़न इट वॉज नेम्ड शहनाई. सो इन दिस वे द शहनाई गॉट नेम. शहनाई को इस प्रकार से नाम मिला, उसने एक राजा के दरबार में उसको स्टार्टिंग में बजाया गया इसलिए उसको शाह, और उसने नाई ने बजाया इसलिए शहनाई ऐसे उसको नाम दिया गया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर शहनाई एंड पुंगी. द पाइप ऑफ शहनाई इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर ऑल्सो, एंड देर आर सम होल्स ऑन इट एंड इट मेक्स सम प्लीजेंट साउंड. सो द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस. सो द पीपल्स वेर थिंकिंग दैट द साउंड इज़ गुड एज वेल एज ऑस्पिशियस. रिलीजियस मामले में देखा जाए तो इसको थोड़ा शुभ मानने लगे, अच्छा मानने लगे. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. सो इट वॉज द रीज़न दैट पीपल थिंक इट इज़ ऑस्पिशियस, इट इज़ गुड, सो दे प्ले इन टेम्पल्स एंड इट इज़ इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल मीन्स विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो हर एक वेडिंग में या टेम्पल में इसको प्ले किया जाता था क्योंकि इसको अच्छा मानते थे, ऑस्पिशियस मानते थे. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently it was used only in temples and wedding. So first there were नौबत. नौबत क्या होता है? नौबत में 9 टाइप्स के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो ये भी वहाँ पे शहनाई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स था उस नौबत में, जो जहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम होता था, किसी एम्परर के दरबार में होगा या किसी टेम्पल में, तो वो नौबत होता था उस टाइम पे. पूरे 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू प्ले देयर, इट वाज नौबत. सो वो तो स्टार्टिंग में नौबत में ही प्ले किया जाता था म्यूज़िक, और उसके बाद कुछ टेम्पल्स में और जब वेडिंग्स होती थी, शादियाँ, वहाँ पे भी शहनाई बजाई जाती थी. बट द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान played that shehnai and invented many ragas in such a way that it was became most popular instrument in that time, and it got so much fame as well as it is played on a classical stage. आज हम देखेंगे कि क्लासिकल स्टेज पे भी शहनाई बजाई जाती है. आप किसी मूवी में देख सकते हो, और जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भी कुछ मूवी में उन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था, उस टाइम पे भी इन्होंने शहनाई बजाई थी. सो क्लासिकल स्टेज पे गए, और यहाँ से सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो इनको जापान में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्रीज़ में जाके इन्होंने शहनाई बजाई थी. सो इसको क्लासिकल स्टेज पे ले जाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर किसी ने किया है तो ही वॉज द लेजेंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumron in Bihar. So when he was just 5-year-old, he used to play one game that is गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा is a game like cricket, जिसमें एक स्टिक होती है और एक छोटी स्टिक होती है, एक बड़ी स्टिक और एक छोटी स्टिक. तो जो गिल्ली को हम छोटी स्टिक बोलते हैं और डंडा जो होता है वो तो हमें पता है, बड़ा वाला डंडा. सो उस प्रकार से वो खेला जाता है. इट्स लाइक ए क्रिकेट गेम. सो ही यूज्ड टू प्ले दैट गेम नियर अ पॉन्ड इन एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरान. डुमरान इज़ अ विलेज, जो डुमरान है उनका गांव है जहाँ पे वो रहते थे बिहार में. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.20 kilogram.
So he would regularly go to the temple, that was Biharji temple, to sing the prayer. चैता गाने के लिए जाते थे वो उस टेम्पल में जब वो छोटे थे बहुत 5 साल के. और चैता गाने के बाद ही वुड अर्न अ प्राइज दैट इज़ लड्डू ऑफ 1.25 किलोग्राम. सो 1 किलो के ऊपर उसको लड्डू दिए जाते थे वहाँ पे जब वो चैता गाता था. एक प्रेयर गाता था, लाइक म्यूज़िक गाने के बाद उनको कुछ लड्डू दिए जाते थे उस टेम्पल में जो बिहारी जी का टेम्पल था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. लोकल महाराज जो वहाँ पे थे, जो भी प्रीस्ट थे, वो उनको देते थे. दिस हैपन 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. So when he was just 5-year-old, he got the prize that was laddu. But after 80 years, when he traveled that much, he got another award. He won another prize, and that was the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. So he was born on 21st March in 1960, and he belongs to a well-known musician family in Bihar. So if you think about his grandfather, whose name was Rasul Baks Khan, he was a Shehnai player in Bhojpur King's Court. There was a king whose name was Bhojpur. In that court, he was Shehnai player, and his father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Shehnai players. So his father Paigambar Baks was also the Shehnai player, and all his paternal ancestors. So paternal ancestors क्या होते हैं? The ancestors from his fathers, जो उस father के यानी जो भी उनके relatives है, उनके चाचा होंगे या कोई भी जो पैटर्नल के हिसाब से सोचेंगे हम, तो सब जो लोग थे वो शहनाई प्लेयर थे. दे वेर इंटरेस्टेड इन दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. द यंग बॉय took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. Now it is Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. So when he was just 3-year-old, he went at his maternal uncle's home with his mom. So maternal uncle को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे मामा होते हैं. पैटर्नल यानी हमारे पिताजी की तरफ से जो भी रिलेटिव, और मैटरनल यानी जो हमारे मम्मी की तरफ से रिलेटिव होते हैं. सो ही वेंट टू बनारस. नाउ इट इज़ कॉल्ड वाराणसी. व्हेन ही वाज जस्ट 3-year-old, ही डेवलप इंटरेस्ट इन म्यूजिक. So he went there and he saw his maternal uncle was playing Shehnai. So he was fascinated. Fascinated का meaning क्या होता है? Just he was attracted with the musical instrument. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play Shehnai. So afterwards he went with his maternal uncle at Vishnu temple in Banaras, and he was employed there. जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे अली बक्स एक एम्प्लॉय थे, शहनाई प्ले करते थे. एंड अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. सो जब भी वो शहनाई प्ले करते थे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत देर तक वहाँ पर बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. सो आफ्टरवर्ड्स ही डेवलप मोर इंटरेस्ट इन शहनाई and he started practicing all the day there alone. अकेले ही जाते थे और प्रैक्टिस करते रहते थे, क्योंकि जैसे हमारे रिलेटिव जो भी चीज़ें करते हैं हमें पसंद आती है वो चीज़ें करना. बारिश हो रही है बेट. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. So he used to go in 2 temples, that was Balaji temple as well as Mangla Maiya temple. And on the bank of the Ganga river he was alone. And apprentice का meaning होता है जो नया होता है, a person who is new. And his favorite haunts क्या होता है? एक place हमारा जहाँ पे हम जाना पसंद करते हैं, where he would practice in solitude. Solitude means alone, all by alone. He used to go there in the temple of Balaji as well as in Mangla Maiya temple, and he would practice there. The flowing waters of the Ganga inspired him to
improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So the water of Ganga river, the flowing water of Ganga river motivated him and inspired him to make some new ragas. So he invented many ragas there near that Ganga river. So he first developed interest when he was 3 years old, when he went with his mother at maternal uncle's home, whose name was अलीबक्स. विष्णु टेम्पल में स्टार्टिंग में बनारस में उन्होंने उनके मामा को देखा, अच्छा सिंग कर रहे थे, वो अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, उनको पैसे भी मिलते थे उस चीज़ के. वो देख के इनको बहुत अट्रैक्शन हुआ म्यूज़िक के प्रति और इन्होंने भी ट्राई किया म्यूज़िक को अपनी लाइफ में लाने का. एंड ही प्रैक्टिस ऑल द डे near the Ganga river and invented many ragas there. But the people were thinking that the Shehnai cannot make new ragas, but he did it. इन्होंने वो करके दिखाया, जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था वो इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." So when he was just 14 years old, he went with his maternal uncle to the Allahabad music conference, and where when he played the music, there was one chief guest whose name was Ustad Fayyaz Khan. He is also a musician and he was the chief guest in that program. So he patted that young boy and said that work hard and you shall make it. Just he motivated Ustad Bismillah Khan when he was just 14 years old. He was motivated by Ustad Fayyaz Khan to compose new musics and to sing music as well as to play Shehnai. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. So there was an opening of All India Radio in 1938 and Ustad Bismillah Khan got an opportunity there to play Shehnai. So it was in 1938. It was big break for him. अच्छा उनको कमबैक मिला उस टाइम पे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने की, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में स्टार्ट हुआ था 1938 में. Soon became an often heard Shehnai player on radio. He became बहुत ज़्यादा बार वहाँ पे रेडियो पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले प्लेयर ये बन चुके थे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. So when India got freedom in 15th August 1947, he became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. So इन्होंने greet किया अपनी शहनाई से नेशन को, जब नेशन को एक फ्रीडम मिल रहा था. He poured his heart out into Raga Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. So he poured the heart of everyone. He impressed everyone who were the present there on the Red Fort. They were influenced with the Shehnai of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ही प्लेड राग काफ़ी देर, राग काफ़ी बजाया था उन्होंने उस टाइम पे और बहुत सारे लोगों को अच्छा फील हुआ था. और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके बाद एक स्पीच दिया, दैट इज़ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जाने वाली स्पीच. उन्होंने बोला कि उस टाइम पे पॉवर्टी, जो क्राइम्स है, ये सारी चीज़ें जो भी अच्छी नहीं है हमारे लिए, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगी. सो इट वाज द स्पीच गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. So he was given performance in India as well as in abroad also. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So first he went to abroad at Afghanistan and the king was there, that is King Zahir Shah, and he was impressed with his music
and he given many prizes, that is carpets and other some other things. So अफगानिस्तान के जो किंग थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए इनकी म्यूज़िक से और उन्होंने इन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दिए. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instruments called Goonj Uti Shehnai. So the Afghanistan king was not only the person who was impressed with his music, but there were many persons who felt so happy after hearing his music. There was one film director whose name Vijay Bhatt. He impressed with his music when he heard that Bismillah played Shehnai in one festival. So he made one movie on it, that is गूंज उठी शहनाई. बहुत ही पुरानी मूवी है ये, उस टाइम की. गूंज उठी शहनाई बहुत ही हिट हुई थी ये मूवी उस टाइम पे, और उस मूवी में इन्होंने गाना भी कंपोज किया था. The film was hit and one of the Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. So the film was hit. ये फिल्म बहुत ही हिट हुई थी. एंड देर वॉज वन कंपोजिशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान ने एक म्यूज़िक कंपोज किया था उस मूवी में. उस गाने का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया. सो ये पुराना गाना है, आप यूट्यूब पे से देख सकते हो. एंड इट वॉज फेमस नेशन वाइड, पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था. चार्टबस्टर का मीनिंग क्या होता है कि रिकॉर्ड ब्रेकर. सारे रिकॉर्ड उसने ब्रेक किए थे उस टाइम पे. इट वॉज द फेमस म्यूजिक देयर. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ड. सेलुलाइड वर्ड क्या होता है कि जैसे हम फिल्म के लिए अभी जैसे हम बॉलीवुड बोलते हैं, तो उस टाइम पे सेलुलाइड वर्ड बोला जाता था. बिस्मिल्लाह खान्स वेंट्योर इन फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू 2. सो दो ही गॉट फेम, ही कंपोज सम म्यूजिक, बट ही मेड ओनली 2 मूवीज़. 2 ही मूवीज़ में उन्होंने काम किया था. एक तो जो थी विजय भट्ट की मूवी, उसमें उन्होंने दिल का खिलौना है टूट गया ये गाना कंपोज किया था, बहुत ही हिट हुआ था ये. उसके बाद उन्होंने एक और बार काम किया विजय भट्ट की मूवी में. विजय भट्ट की मूवी में तो एक बार काम किया था उन्होंने. उसके बाद विक्रम श्रीनिवास की मूवी में उन्होंने काम किया, वो कन्नड़ा मूवी थी. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's Kannada venture Sandhi Apana. I just can't come to terms with the artificially and glamour to film world, he says with emphasis. So इन्होंने 2 मूवी में काम किया था और इन्होंने बोला कि just he doesn't like to work in a glamour film world. He feels that it's not real. There are some glamour and he doesn't like to work in film. उन्होंने बोला कि मुझे फिल्म में काम करना तो ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने 2 मूवीज़ में काम किया था, यानी कुछ म्यूज़िक कंपोज किया था उन्होंने, और उनको ये ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं थी. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो ही गॉट रिकग्नाइजेशन एंड अवार्ड्स. तो इनको अच्छी पहचान और अवार्ड्स बहुत ही जल्दी मिल गए. थिक एंड फास्ट मीन्स वेरी सुन ही गॉट दैट मच फेम एंड गॉट अवार्ड्स. सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड इन लिंकन सेंट्रल हॉल दैट इज सिचुएटेड इन अमेरिका. अमेरिका के जो लिंकन सेंटर हॉल है वहाँ पे इनको म्यूज़िक परफॉर्म करने का मौका मिला था. सो ये हमारे लिए गर्व की बात है. एक इंडियन वहाँ पे गया था लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उन्होंने म्यूज़िक वहाँ पे अच्छी तरह से गाया था. So he also took part in the world expositions in Montreal in the Cannes Art Festival. So he performed in Montreal also. Montreal जो है ना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी इन्होंने परफॉर्म किया था उसके बाद. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, तो उसके बाद वो ओसाका ट्रेड फेयर में भी जाके उन्होंने परफॉर्म किया जो जापान में मौजूद है. सो स्टार्टिंग में उन्होंने अफगानिस्तान को गए, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मॉन्ट्रियल में उन्होंने परफॉर्म किया जो आर्ट फेस्टिवल है, और उसके बाद उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर जो जापान में मौजूद है वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम. सो तेहरान जो है ना जापान में है, सॉरी ये जापान में नहीं है, तेहरान जो है ना ईरान में है. हाँ ईरान में है. सो वो ईरान में भी जाके उन्होंने परफॉर्म किया, और ईरान में तो
उनके म्यूज़िक को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। उसको नाम दिया गया है तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम से वहाँ पे एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। ऑडिटोरियम क्या होता है? जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स या फंक्शंस लेते हैं। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred means to be given. So जब अवार्ड या कुछ डिग्री होती है तो हम कॉन्फर्ड वर्ड यूज़ करते हैं और इम्पोर्टेंस देने के लिए। सो उनको नेशनल अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले। वो पद्मश्री उनको मिल गया था, उसके बाद पद्म भूषण अवार्ड मिला और पद्म विभूषण भी मिला, और आपको पता है जैसे कि उनको भारत रत्न भी मिला था। तो ये जो सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड हमारे इंडिया में होते हैं तो सारे तो इन्होंने ही पा लिए थे। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में, फॉरेन में, अब्रॉड में जाके भी परफॉर्मेंस दिया और वहाँ पे हिट रहे। सो इतने फेमस थे ये पर्सन। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with a rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. So in 2001, when he was receiving Bharat Ratna award, he gave one speech, and when he was receiving award, he felt so happy. His eyes were shining, उसकी आँखें चमक रही थी और उनको बहुत हैप्पीनेस फील हुआ। And in his speech he told that teach your children music because music is our India's tradition. It is richest tradition, he said. उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ क्योंकि म्यूज़िक जो है इंडिया का बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और उन्होंने कहा कि द वेस्टर्न पीपल्स फ्रॉम द अब्रॉड पीपल्स आर कमिंग अवर इंडिया टू लर्न म्यूज़िक। सो बाहर से भी लोग इंडिया में आ रहे हैं म्यूज़िक को सीखने के लिए, ऐसा उन्होंने बोला। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. So he has travelled all over the world, and Khan Saab, he is fondly called, उनको प्यार से खान साहब बोला जाता है। सो बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के बाद भी वो बनारस और डुमरान को आज तक नहीं भूले हैं। वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड के सबसे अच्छे टाउन है उनके लिए। सो बनारस क्या है, जहाँ पे उनका मामा का जो गांव था वहाँ पे गए थे इन्हें, और वहाँ पे उन्होंने 3 साल की उम्र से ही म्यूज़िक को अपने लाइफ में एंट्री दी और म्यूज़िक स्टार्ट किया। और डुमरान जो है वहाँ पे वो चैता गाते थे और उनको लड्डू प्राइज़ मिला था। वो जो दोनों गाँव है उनका बर्थ प्लेस है डुमरान। और maternal uncles from Banaras, he can't forget both the villages. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the students promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. So there was one student of him who lived in USA. यूएसए से एक स्टूडेंट्स आया था और उन्होंने बोला दैट ही वुड लाइक हिम टू टेक यूएसए टू ओपन अ न्यू स्कूल फॉर शहनाई, एंड ही promised him to recreate the situation like बनारस, मीन्स ही वांटेड टू मेड सम टेम्पल्स देयर। बनारस में जो टेम्पल है वैसे टेम्पल भी वहाँ पे बनाने का वादा किया उसने, और बोला कि हम म्यूज़िकल स्कूल स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम वहाँ पे टेम्पल्स तो बना दोगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा भी वहाँ पे लेके आ सकते हो? तो मैं वहाँ पे ऑब्वियसली आ जाऊँगा। सो इट शोज़ दैट ही डजेंट वांट टू लीव हिज प्लेस। उसको बनारस या डुमरान जो गांव है छोड़ के नहीं जाना चाहता था, ये उनको शो करता है। हालांकि उनको फॉरेन से बहुत सारे ऑफ़र मिले थे बट उन्होंने रिजेक्ट किए। आई कीप, शायद कुछ रह गया हमारा। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. So yearning क्या होता है, यानी विश करना, मिस करना किसी चीज़ को या वहाँ पे रहने के लिए। So he says that whenever he is in foreign he just think about our India, about our Hindustan, and while in Mumbai I think only of Banaras and the Holy Ganga, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमरान। सो बोलते हैं कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है और रिवर गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में आ जाता हूँ तो मुझे
जो डुमरान गांव का टेम्पल है, मत्था है, वो मुझे याद आता है, उनका गांव याद आता है। सो इससे हमें पता चलता है कितने डाउन टू अर्थ थे, यानी कितने भी बड़ी लेवल पे जाने के बाद इन्होंने अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको भूले नहीं है। डाउन टू अर्थ मूवमेंट थे, जहाँ पे भी होते थे, बाहर होते थे तो इंडिया को याद करते हैं, इंडिया में है तो बॉम्बे में है तो बनारस को याद कर रहे, बनारस में है तो फिर वो उनके विलेज को याद कर रहे। सो लाइक दिस हिज नेचर वॉज सो गुड। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So Ustad Bismillah Khan's life is really perfect example of rich and cultural heritage of India. So एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, हालांकि ये डेवोट मुस्लिम है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पूरे ट्रेडिशन वगैरह मानने वाले एक मुस्लिम, और वो रहने के बाद उनको उनके रिलीजन के प्रति तो बहुत प्यार है मुस्लिम, उसके साथ में बाकी के जो रिलीजन है उनके प्रति भी प्यार है। और वो कहते हैं कि एक काशी विश्वनाथ टेम्पल में अगर एक बंदा जाके वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहा है, सो ये बताता है कि मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू के टेम्पल में जाना और हिंदू के प्रति इतना लगाव रहना, ये करने वाले को हम लेजेंड ही कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे थे वो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन, क्या आ गया है व्हाट्सएप के लिए आज का मज़ेदार पोस्ट। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. So जब 90 एज के थे तो ये इनका देहांत हो गया 2006 में। हालांकि बहुत दिनों से ये इल थे, इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट फ्यूनरल अरेंज किया उस टाइम पे। और जब इनका देहांत हुआ था तो उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन की छुट्टी भी दे दी थी। सो इट वाज द स्टोरी एंड द बायोग्राफी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एक कन्वर्सेशन दिया गया यहाँ पे, शेखर गुप्ता ने जब उनको कुछ सवालात पूछे थे, उनको बताया गया था कि जब पार्टीशन हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो आपने पाकिस्तान में जाने के बारे में सोचा नहीं क्या? उन्होंने कहा कि मैंने वैसा नहीं सोचा, हालांकि मैं पाकिस्तान जा चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद मैंने हिंदू लोगों को सलाम वालेकुम कहा और मुस्लिम लोगों को नमस्ते कहा, यानी मैं को किसी जात या धर्म को नहीं मानता। ही वांटेड टू से दैट। सो इन दिस वे द चैप्टर एंड्स हियर। ओके, बाय।